So welcome to all the students of Pride India Central School and all the students worldwide. I request all of you to stay home, stay safe and use all the proper precautions which are needed to prevent COVID-19. Use of proper masks, use of hand gloves, use of sanitizers and maintaining of the social distance. Okay, so today we are going to learn about English, the chapter First Flight. I think the first chapter has been taught to you by Sahani sir. The second chapter even, I think almost it has been taught to you by, that is about Nelson Mandela, who is also called as the Gandhi of South Africa. It has been taught to you by Sahani sir. So the third chapter I will be carrying about is the First Flight. Is in the book The First Flight. That is the chapter is two stories about flying. That's the two different stories about flying. There are many portions which have been deleted for you in the examination, for the CBSE board. Okay. So now here we will go towards the first one, that is his first flight. It's page number 32. Okay, page 32. His first flight. His first flight. His first flight. So what is here is saying, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. That is since earliest times, since years and years ago, thousands and thousands of years ago, human has always dreamt. मतलब उन्हें वो हमेशा क्या dreamt मतलब dreamt है ना, तो वो हमेशा से ये सपना देखते थे कि वो आकाश में कैसे जा सकते हैं, आकाश में जाकर कुछ ऐसा कुछ अलग क्या कर सकते हैं. वो हमेशा से उनके मन में ये चाहत रही थी. Here are the two stories about flying. यहाँ पे उन्हीं दो चीज के बारे में जो है एक कहानी यहाँ पे दी हुई है ना. A young seagull is afraid to fly. What is seagull? It's a kind of seabird. Seagull, S-E-A-G-U-L-L. Seagull, S-E-A-G-U-L-L. It's a kind of seabird. It's a kind of seabird. Where? Which comes from a family of Laridae. H-L-A-R-I-D-A-E. Which comes from a family of Laridae. L-A-R-I-D-A. Laridae, and is basically found in the Arctic and the Antarctica circles. It's found in the Arctic and Antarctica circles. It's found in Arctic and Antarctica circles. Okay. So now his first flight. The young seagull was alone on his ledge. The young seagull was alone on his ledge. Ledge meaning already is given in your book. A narrow horizontal self projecting from a wall or a cliff. Cliff means at a height. A narrow horizontal self which is projecting from a height. मतलब एक ऊंचाई पे क्लिफ पे जाके एक नैरो सेल्फ जैसा बना हुआ, एक नैरो चबूतरे जैसा सीधा बहुत हाइट पे, क्लिफ मतलब एक हाइट पे जाके बना हुआ. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. His two brothers, उसके दो भाई and one sister, एक बहन जो है, had already flown away. Flown मतलब fly, flown उड़ गए थे, वहां से चले गए थे. Flown away the day before. He had been afraid to fly with them. He had been afraid to fly with them. लेकिन उसे जो है उन लोगों के साथ उड़ने का उसे डर लगता था. उड़ने में उसे डर लगता था. Fly, flown होता है ना, तो fly मतलब उड़ना, उड़ने में उन्हें डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी तरह से भी, when he had taken a little run, जब वो थोड़ा दौड़ा, little run मतलब थोड़ा दौड़ा, forward आगे, to the brink, brink मतलब edge of the land, B-R-I-N-K, brink, B-R-I-N, brink, E-D-G-E, edge of the land. This is nothing but edge of the land, कोना है ना, जो जमीन का सतही कोना, उसका जो बिल्कुल कोना, edge of the land, brink of the ledge, and attempted to flap his wings. और जैसे वो अपने विंग्स को flap मतलब ऊंचा उड़ाना चाहा, विंग्स के जरिए उड़ना चाहा, क्या हो गया? He became afraid. वो डर गया. The great expanses of the sea stretched down beneath. और नीचे जो बहुत बड़ा विशाल सा समुद्र, expanses मतलब expansion, expansion का ही expanses, expansion, E-X-P-N-S-I-O-N, expansion विशाल बड़ा हुआ है ना, expansion, that is expanse of the sea, stretched मतलब दूर दूर तक, दूर दूर, S-T-R-E-A-T-S-T-R-E-T-C-H-E-D, stretched मतलब दूर दूर तक, stretched down beneath, down मतलब नीचे, beneath मतलब बहुत ही गहरा, beneath
है ना, नी एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत ही नीचे, माइल्स, मीलों नीचे, है ना। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगा कि जो उसका विंग्स है जिससे वो उड़ता, वो उसको क्या, वो उसका सहायता नहीं कर पाएगी, है ना, सपोर्ट हिम। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, इसलिए उसने अपना सर झुकाया, बेंट हिज हेड एंड रैन अवे, और वापस से कहां, वापस से अपने होल, अपने जो है जहां वो रह रहा था जिस शेर में, उसकी ओर बढ़ चला, है ना, एंड रैन अवे टुवर्ड्स द होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पे वो रात को सोया करता था। इवन व्हेन ईच ऑफ the brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when each of his brothers, और जो उसके भाई थे, दो भाई थे और एक बहन थी, उनका जो विंग्स है, जो उनका जो विंग जिससे उड़ते हैं, है ना, वो इसके बनिस्बत बहुत ही छोटा था। अगर आप इससे कंपेयर करते तो वो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उनने इतनी हिम्मत थी कि वो दौड़ के गए और उन्होंने उड़ना चालू कर दिया, है ना। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his, shorter मतलब छोटा था, ran to the brink, है ना, वो एज की ओर भागे, wings were far, एज की ओर भागे, flapped their wings, और अपने विंग्स को खोला, flapped मतलब खोला, wings and flew away, और उड़ने लगे। He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. He failed मतलब वो नाकाम रहा, he failed to muster the courage, वो करेज मतलब हिम्मत, साहस, वो साहस जुटाने में ये बिल्कुल ही असमर्थ रहा। टू टेक दैट प्लंग, है ना, एक छोटा सा स्टेप, प्लंग मतलब स्टेप, PLUNG प्लंग, PLUNG प्लंग मतलब ये छोटा सा स्टेप ले लेता तो ये भी उड़ना चालू करता, लेकिन क्या हुआ, ये स्टेप में वो आके वहां पे क्या हो गया, उसे डर लग गया कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। टू टेक अप अ प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, है ना, डेस्परेट मतलब बहुत जिसकी चाह हो आपको, डेस्परेट, आई एम डेस्परेट फॉर गेटिंग 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मुझे 90% मार्क्स लाना है तो लाना है बोर्ड एग्जाम से, मुझे अच्छा करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, अपने जिला का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो किसी भी हालत में मुझे ये करना है। तो इसका मतलब क्या है, आप उसके लिए डेस्परेट हैं, किसी भी एट एनी कॉस्ट आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू स्कोर good marks in the board examination. I will not give any excuse. ई हो गई, ऊ हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं। His father and mother had come around, calling to him Shrilly. उसके माता पिता आए, श्रीली मतलब SHRILLY, श्रीली, SHRI, श्रीली मतलब इन हाई पिच मतलब जोर की आवाज में, श्रीली मतलब हाई पिच, जोर से बोलना, वैसे जोर से चिल्लाते हैं ना, वैसे जोर से बोलना, इन कॉलिंग हिम श्रीली इन हाई पिच, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग हिम, स्कोल्डिंग, UP अप BRAIDING, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग, स्कोल्ड मतलब डांटना, एंड अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग हिम, थ्रेटनिंग मतलब उसे डराना धमकाना, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, है ना, कि तुम्हें भूखा रखेंगे, तब तक भूखा रखेंगे जब तक कि तुम खुद से सीख नहीं जाओ, उड़ना सीख नहीं जाओ। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे बहुत ही डर लगता था, इससे उसे ये काम करने में बहुत ही डर लगता था। That was 24 hours ago, ये 24 घंटा पहले की बात है। Since then nobody had come near him, और उसके बाद से कोई भी इसके पास नहीं आया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. और उसके पहले दिन क्या उसने देखा, अपने माता पिता को जो उसके दो भाई और एक बहन के साथ आराम से लहरा रहे थे, उड़ रहे थे, है ना, अच्छे से उड़ रहे थे। Parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight. उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से अलग अलग तरीके से जो है आप उड़ सकते हैं, है ना, और अलग अलग आपदा में, अलग अलग चीजों में किस तरह से, अलग अलग वेदर्स में आप अलग अलग कंडीशंस में किस तरह से उड़ सकते हैं। Teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. How to skim the wave. Skim मतलब क्या होता है, to move lightly just above the surface of liquid, है ना,
ऑफ एनी सरफेस, इट मे बी लिक्विड और एयर, एनी सरफेस, मतलब किस तरह से आप किसी सरफेस के ऊपर, किसी सतह के ऊपर आराम से उड़ सकते हैं, वो उसे सिखा रहे थे, है ना, स्किम द वेव्स, है ना, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली को देखते हुए उसमें डुबकी लगाना है और फट से मछली को पकड़ लेना है ताकि वो आपका भोजन बन सके। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, बल्कि उसने अपने ओल्डर ब्रदर को, अपने बड़े भाई को देखा मछली पकड़ते हुए, एंड डेवोर मतलब ईट हंग्रीली, और मतलब बहुत भूखा हुआ, जल्दी जल्दी खा रहा है। जैसे कि आप बहुत भूखे होते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए, शाम को मम्मी ने कुछ भी दे दिया, फटफट खाना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी। मम्मी बोलती है बेटा जरा धीरे से खाओ, बेटी जरा धीरे से खाओ, है ना, लेकिन नहीं, आप नहीं मानते, आप जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। तो ईटिंग क्विकली और हंग्रीली, एज इफ यू आर वेरी मच हंग्री, है ना। डेवोर का मतलब वही होता है ना, DEVOUR, डेवोर। Eating quickly, है ना, EATING, eating quickly, devour it, standing on the rock while his parents circled around raising a proud cackle, है ना। तो उसने अपने भाई को देखा कैसे मछली पकड़ के वो जल्दीबाजी में खा रहा था कि उसे ऐसा मतलब कि वो बहुत भूखा हो, एंड स्टैंडिंग ऑन द रॉक while his parents circled around raising a proud cloud, जबकि उसके माता पिता जो है हवा में तैर रहे थे, घूम रहे थे, मतलब हवा से बातें कर रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, एंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, CACKLE, कैकल मतलब क्या है, CAC, कैकल मतलब लाफ, लाउड लाफ, LOUD, लाउड, LAUGH, लाउड लाफ मतलब जोर जोर से हंसना। जैसे आपने देखा हो पक्षियों को जब वो उड़ते हैं तो ची ची बहुत अच्छे सुर में चहचहाते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने ही धुन में है, अपने ही धुन में मजा ले रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही वो भी अपने ही धुन में थे, जोर जोर से हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे, उड़ने का आनंद ले रहे थे, है ना। And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, है ना। And all the morning, और सुबह से ही the whole family had walked about on the big plateau, और पूरी फैमिली जो प्लेट्यू आपने पढ़ा है सोशल साइंस में, वहां पे क्या उड़ रही थी, वो लोग वहां पे चल रहे थे, वॉक मतलब चल रहे थे वहां पे ऑन द बिग प्लेट्यू, मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, क्लिफ मतलब एक सतह ऊंचाई, है ना, एक ऊंचाई पे जहां से फिर डीप स्लोप आता है ना, तो क्लिफ पे, एंड टॉन्टिंग हिम, टॉन्टिंग मतलब क्या, उसको टॉन्ट कर देते, होता है ना, किसी ने कुछ गलती कर दिया तो बार बार उसको उस गलती का एहसास दिलाते, टॉन्ट करते रहते, वही है TAUNTING, टॉन्टिंग, है ना, मतलब बार बार उसको पोक करना, उसको पोकिंग जिसको बोलते हैं, टॉन्टिंग। कुछ बेचारा से कोई गलती हो गया तो बार बार उसको उसी के लिए उकसाना, गलत बोलना, उसके लिए उसी बोलते हैं टॉन्टिंग, पोकिंग। टॉन्टिंग हिम विथ हिज cowardice, COWARDICE, cowardice मतलब कोवर्ड मतलब क्या होता है, मतलब जो who is not brave, जो ब्रेव नहीं है, डरा हुआ है, जो डरपोक है, who is not brave, कोवर्ड मतलब not brave, जो ब्रेव नहीं है, डरा हुआ है ना, who is not brave, जो डरा हुआ है। कोवर्ड का मतलब वही होता है, COWARDICE लगा दिया, कोवर्ड मतलब who is not brave, जो डरा हुआ है, तो हमेशा उस पर क्या बोलते हैं, उसे उसी के लिए चिढ़ाते रहते थे कि तुम डरपोक हो, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम कभी उड़ नहीं पाओगे, तो ये सब उससे डराते रहते थे, है ना। द सन वॉज नॉट असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग आप पढ़े सेम है, छोटे से बड़ा, बड़ा छोटा, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से मतलब बड़ा, है ना, गिर नहीं रहा था, असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ब्लेजिंग मतलब BLAZING, वेरी हॉट, ब्लेजिंग BLAZING, ब्लेजिंग मतलब वेरी हॉट, है ना, BERY, वेरी हॉट, ब्लेजिंग मतलब वेरी हॉट। सो द सन वॉज नॉट असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत थी और उसे क्या, उसे परेशानी होने लगी, उससे दिक्कत होने लगी क्योंकि उसने पहली रात से नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कहा था कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे तुम्हें जो है खाना नहीं मिलेगा, है ना। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. So he stepped slowly out of the brink to the ledge, है ना। तो वो क्या हुआ, धीरे से क्या हुआ, वो वहां से निकला
slowly out to the brink of the edge, और वो कहाँ चल गया? Brink of the edge. Brink of the edge में समझना है तो आपने समझा है क्या है? Narrow horizontal shelf protecting from a wall, है ना, एकदम अंत में चला गया वो. So he felt the heat because so he stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg, और एक पैर पे खड़ा हो गया, with the other leg hidden under the wing. Hidden मतलब छिपा हुआ, और दूसरे पैर को क्या किया उसने? अपने पंख में छिपा लिया. He closed one eye, एक आंख को अपना बंद कर लिया, ऐसे करके एक आंख को बंद कर लिया, one eye, then the other, और फिर दूसरे को बंद किया, and pretended to be falling asleep. Pretend मतलब ऐसा दिखावा करना. Pretended, 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 pretended मतलब दिखावा करना. To show off, to show off है ना, दिखावा करना. ऐसा दिखावा करते हैं ना. Pretended मतलब जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं? किताब कॉपी लेके बाहर सामने बैठ जाएंगे, किताब कॉपी, पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, पढ़ना शुरू कर देंगे. तो क्या है? दिखावा करते हैं. ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ चलता रहता है मन में, है ना, सोचते रहते हैं इसके बारे में, उसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, कभी व्हाट्सएप के बारे में, कभी फेसबुक के बारे में, है ना. तो प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा करना. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया. नो नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान नहीं देना. नोटिस मतलब ध्यान होता है, नोटिस मतलब ध्यान. तो नो नोटिस मतलब ध्यान नहीं देना. He saw his brother, two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk in their neck. तो he saw his two brothers, उसने अपने दो भाई, and his sister, और अपनी बहन को, lying, lying मतलब पड़ा हुआ, lying, lying मतलब पड़ा हुआ, पड़ा हुआ, lying on the plateau, dozing, 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 dozing मतलब जो थोड़ा झपकी लेते हैं ना, ऐसे जैसे कभी कभी होता है आप गाड़ी में चल रहे हैं और कभी कभी ड्राइवर होता है गाड़ी चला रहा है और हल्का सा झपकी लिया, इसी को बोलते हैं डोजिंग. झपकी लेने को क्या बोलते हैं? डोजिंग. सो डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इन देयर नेक, और अपने जो गले को है किसमें? तो नेक में बिल्कुल ऐसे करके चिपका के जो है वो सो रहे थे, डोज कर रहे थे, हल्का नींद में, हल्की नींद में इसको बोलते हैं थे. हिज फादर वाज प्रिटेंडिंग, प्रीइंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक. प्रीइंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द फेदर, मतलब उसे अच्छा रखने की कोशिश करते हो. मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर मतलब उससे अच्छे से, हम लोग होता है ना गाड़ी, हम लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं अच्छे से, या मम्मी पापा कभी कभी क्या करते हैं? हमारे बालों को ऐसे अच्छे से करते हैं ताकि वो सही रूप से बना रहे. या फिर हम लोग जब जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो उस बालों को अच्छा करते हैं, वो कोई देखेगा तो बड़ा बहुत अच्छा लगेगा, वाह कितना अच्छा बाल इस लड़की का, है ना. तो वैसे लोग करते हैं ना, तो है ना. सो हिज फादर वाज प्रेइंग का मतलब यही होता है, द फेदर ऑन हिज वाइट बैक. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. थोड़ी ऊंचाई पे प्लेट्यू पे वो खड़ी थी. Her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of a fish that lay at her feet. उनके पाँव के नीचे एक छोटी सी मछली थी, जिन्हें टोर मतलब फाड़ना, T-O-R-A, टोर है ना, to tear off, फाड़ देना, है ना. कॉपी लेके फाड़ देते हैं तो tear off. So to tore, है ना, tore at a piece of fish that lay at her feet and then scratched each side of her beak on the rock. Okay, and then scratched, S-C-R-A-P-P-E-D, scratched, S-C-R-A-P-P-E-D. scrap मतलब क्या होता है? फाड़ देना, उसको तहस नहस कर देना. scrapped off, तुमने क्या लिखा? scratched each side of her beak on the rock, है ना. scratch मतलब ऐसे ऐसे करना, each side of the beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. And wet मतलब to sharpen, W-H-E-T. wet मतलब नौखिला, sharp, है ना. sharpen, wet मतलब to sharpen, नौखिला बनाना, है ना. तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे से क्या, गा से हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ क्लियर होगा. सो दिस इज द चैप्टर 3 ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट, 2 stories about flying. So I think this must be very much clear to you, to all the students. So I request all the students to go through this chapter, to learn till the point I have taught, है ना. Go through the chapter, read line by line. I have explained line by line in Hindi and you will clearly get to it easily, very easily. So thank you so much for listening to me patiently. This is Engineer Kumar Harshvardhan from Pride India Central School, Rajdham, Khagaria, Mahaskut, signing off for today, and we will very soon meet in our next class. So thank you so much for listening to me, and stay home, stay safe.
and take care of your parents and the elder ones. Thank you so much.